Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books September 15th, 2025. Top Current Affairs News, GK in Hindi and English and Newspaper Analysis. Asterisk Q1. दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? Asterisk which became the first government medical college in India to provide training on the Da Vinci robotic system? A. Chipmur, Puducherry. B. AIIMS, Delhi. C. KGMU, Lucknow. D. PGIME, Chandigarh. अंश AIIMS दिल्ली बटा एम्स दिल्ली। एक्सप्लेनेशन दा विंची रोबोटिक सिस्टम एक उन्नत सर्जिकल तकनीक है। AIIMS दिल्ली पहला सरकारी संस्थान बना जहां इस पर डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। Backhand index pointing right. The Da Vinci robotic system is an advanced surgical technology. AIIMS Delhi has become the first government institution to provide training on it. Asterisk Q2. चौथा तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? Asterisk in which country was the Fourth Coast Guard Global Conference organized? A. France. B. Italy. C. Japan. D. India. अंश इटली बटा इटली। एक्सप्लेनेशन यह सम्मेलन समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। Backhand index pointing right. The conference focused on strengthening maritime safety and international cooperation. Asterisk Q3. वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वां आयुर्वेद दिवस किस राज्य में आयोजित होगा? Asterisk in which state will the historic 10th Ayurveda Day with global outreach be organized? A. Kerala. B. Gujarat. C. Goa. D. Uttar Pradesh. अंश गोवा बटा गोवा। एक्सप्लेनेशन इस बार आयुर्वेद दिवस का आयोजन गोवा में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ होगा। Backhand index pointing right. This year, Ayurveda Day will be celebrated in Goa with global participation. Asterisk Q4. सियाम भारत सैन्य अभ्यास किस देश में किया गया? Asterisk Siam India military exercise was conducted with which country? A. Vietnam. B. Thailand. C. Myanmar. D. Indonesia. अंश थाईलैंड बटा थाईलैंड। एक्सप्लेनेशन सियाम भारत थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने वाला अभ्यास है। Backhand index pointing right. Siam is a bilateral exercise aimed at strengthening military cooperation between India and Thailand. Asterisk Q5. 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? Asterisk where was the 11th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference organized? A. Mumbai. B. Bengaluru. C. New Delhi. D. Hyderabad. अंश बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। एक्सप्लेनेशन इस सम्मेलन में भारत क्षेत्र के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। Backhand index pointing right. Representatives from Indian states and UTs participated in this conference held in Bengaluru. Asterisk Q6. भारत रत्न भूपेन हजारिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? Asterisk the book Bharat Ratna Bhupen Hazarika has been written by whom? A. Anuradha Sharma. B. Mamoni Raisam Goswami.
C. Shankar Barua. D. Janavi Barua. अंश अनुराधा शर्मा बटा अनुराधा शर्मा। एक्सप्लेनेशन यह किताब प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और भारत रत्न भूपेन हजारिका के जीवन और योगदान पर आधारित है। Backhand index pointing right. The book highlights the life and contributions of legendary singer and Bharat Ratna awardee Bhupen Hazarika. Asterisk Q7. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the director of the All India Institute of Ayurveda, AIIA? A. Pradeep Kumar Prajapati. B. Tanuja Nazari. C. Rajesh Kotesha. अंश प्रदीप कुमार प्रजापति बटा प्रदीप कुमार प्रजापति। एक्सप्लेनेशन प्रदीप कुमार प्रजापति ने तनुजा नेसरी की जगह ली है और अब वह AIIA के निदेशक बने हैं। Backhand index pointing right. Pradeep Kumar Prajapati replaced Tanuja Nazari as the new director of AIIA. Asterisk Q8. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? Asterisk which country is hosting the World Athletics Championship 2025? A. USA. B. Japan. C. Germany. D. Qatar. अंश जापान बटा जापान। एक्सप्लेनेशन जापान 2025 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान है। Backhand index pointing right. Japan is hosting the 2025 World Athletics Championship. Asterisk Q9. अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? Asterisk where was the All India Thal Sainik Camp 2025 organized? A. Mumbai. B. Lucknow. C. Delhi. D. Pune. अंश दिल्ली बटा दिल्ली। एक्सप्लेनेशन इस शिविर में पूरे देश से NCC कैडेट्स ने भाग लिया। Backhand index pointing right. NCC cadets from across India participated in the camp held in Delhi. Asterisk Q10. इस देश ने अपना पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफालसीवीएक्स विकसित करने की घोषणा की है। Asterisk which country has announced the development of its first indigenous malaria vaccine Enfalcivax? A. USA. B. India. C. UK. D. South Africa. अंश इंडिया बटा भारत। एक्सप्लेनेशन भारत ने अपना पहला घरेलू मलेरिया वैक्सीन एडफालसीवीएक्स विकसित किया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। Backhand index pointing right. India has developed its first indigenous malaria vaccine Enfalcivax, a major milestone in healthcare. Asterisk 16 September 2025. 1. भारत और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $126 मिलियन का समझौता किया है। Asterisk India and Asian Development Bank have signed a $126 million agreement to promote tourism in Uttarakhand. 2. भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का है। Asterisk India aims to achieve 500 gigawatts of renewable energy capacity by the year 2030. 3. भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर तेहरान में आयोजित किया गया। Asterisk the third round of trilateral talks between India,
Iran and Armenia was held in Tehran. 4. केरल सितंबर के 18 से 19 को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला का आयोजन करेगा। Kerala will organize a national AYUSH mission workshop on IT solutions in AYUSH sector on September 18th to 19th. 5. भारत और मॉरिशस के बीच हाल ही में 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। Recently, 7 important agreements have been signed between India and Mauritius. 6. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 20 लाख परिवारों को मुफ्त और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई गई है। Under the PM Surya Ghar scheme, 20 lakh families have been provided free and sustainable electricity. 7. इजराइल ने हाल ही में अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। Israel has recently launched its new spy satellite OFEC 19 successfully. 8. भारत ने 2023 से 24 में $34.4 बिलियन मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया है। India has exported textile items worth $34.4 billion in 2023 to 24. 9. भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बाढ़ से निपटने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया है। The Indian Army has launched Operation Rahat to deal with floods in Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. 10. रूस के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स विकसित की है। Scientists in Russia have developed the world's first mRNA cancer vaccine Enteromics. 11. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मार्च 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। The target of PM Surya Ghar scheme is to install 1 crore rooftop solar plants by March 2027. 12. भारत हाल ही में हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। India has recently joined the Health AI Global Regulatory Network. 13. प्रधानमंत्री ने असम में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। The Prime Minister participated in the program in Assam to commemorate the 100th birth anniversary of Dr. Bhupen Hazarika. 14. श्री अमित शाह 16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। Mr. Amit Shah will inaugurate the Anti-Narcotics Task Force Conference in New Delhi on September 16, 2025. 15. बिहार में हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। The Royal Bhutan Buddhist Temple has been inaugurated recently in Bihar. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 16 अगस्त 2025। Heavy checkmark language Hindi and English #bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense Allstate all one-day exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।
*1. हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new CEO of the International Cricket Council, ICC? A. ग्रेग बार्कले बटा ग्रेग बार्कले, B. जॉन हावर्ड बटा जॉन हावर्ड, C. इमरान ख्वाजा बटा इमरान ख्वाजा, D. जॉनी ग्रेव बटा जॉनी ग्रे, White heavy checkmark/answer, D. जॉनी ग्रेव बटा जॉनी ग्रे, Blue Book Static GK Fact *. आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में स्थित है। The headquarter of ICC is located in Dubai, United Arab Emirates, UAE. *2. हाल ही में किस संस्थान ने दा विंची सर्जिकल रोबोट स्थापित कर रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण शुरू किया है? Which institution has recently installed the Da Vinci surgical robot to start robotic surgery training? A. Upgeimer Chandigarh. B. AIIMS New Delhi. C. Jipmer Puducherry. D. KGMU Lucknow. White heavy checkmark/answer, B. AIIMS New Delhi. Blue Book Static GK Fact *. AIIMS न्यू दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी। AIIMS New Delhi was established in 1956. *3. हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? Where has APIDA opened its first regional office recently? A. वाराणसी बटा वाराणसी, B. पटना बटा पटना, C. रांची बटा रांची, D. लखनऊ बटा लखनऊ, White heavy checkmark/answer, B. पटना बटा पटना, Blue Book Static GK Fact *. एपीडा की स्थापना 1986 में हुई थी। APIDA was established in 1986. *4. हाल ही में प्रधानमंत्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जो भारत की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण व संरक्षण से संबंधित है? Which portal has been launched by the PM for digitization and preservation of India's manuscripts? Again, Baratam Portal. B. Bharat Heritage Portal. C. Sanskrit Situ Portal. D. Manuscript India Portal. White heavy checkmark/answer, B. Bharat Heritage Portal. Blue Book Static GK Fact *. भारत में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM 2003 में शुरू किया गया था। National Mission for Manuscripts, NMM, was launched in 2003. *5. हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has recently taken charge as the director of All India Institute of Ayurveda, AIIA, New Delhi? A. प्रो महेश व्यास बटा प्रोफेसर, Mahesh Vyas. B. डॉक्टर मनोज नेसरी बटा DR, C. प्रो प्रदीप कुमार प्रजापति बटा प्रोफेसर, Pradeep Kumar Prajapati.
जे प्रो रमेश चंद्र शर्मा बटा प्रोफेसर। Ramesh Chandra Sharma. White heavy check mark slash answer B. डॉक्टर मनोज नेसरी बटा डीआर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. AIIA की स्थापना 2010 में की गई थी। AIIA was established in 2010. Asterisk 6. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC की 89वीं जनरल मीटिंग भारत में कहाँ आयोजित की जा रही है? Where is the 89th General Meeting of the International Electrotechnical Commission, IEC, being hosted in India? A. भारत मंडपम नई दिल्ली बटा भरत मंडपम न्यू दिल्ली। B. विज्ञान भवन नई दिल्ली बटा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। C. प्रगति मैदान नई दिल्ली बटा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। जे इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली बटा इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। White heavy check mark slash answer B. विज्ञान भवन नई दिल्ली बटा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. IEC की स्थापना 1906 में हुई थी। IEC was established in 1906. Asterisk 7. हाल ही में किसे भारत का नया उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new Deputy Election Commissioner of India? A. अरविंद खरे बटा अरविंद खरे। B. तरुण कुमार पिथोड़े बटा तरुण कुमार पिथोड़े। C. पवन कुमार शर्मा बटा पवन कुमार शर्मा। जे निधि पांडे बटा निधि पांडे। White heavy check mark slash answer B. तरुण कुमार पिथोड़े बटा तरुण कुमार पिथोड़े। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। The Election Commission was established on January 25, 1950. Asterisk 8. समुद्र प्रदक्षिणा विश्व की पहली ऑल वुमन त्रिसेवा नौकायन परिक्रमा यात्रा कहां से रवाना हुई? Samudra Pradakshina, the world's first all-women tri-service circumnavigation sailing expedition, was flagged off from A. मुंबई बटा मुंबई। B. कोच्चि बटा कोची। C. विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम। जे चेन्नई बटा चेन्नई। White heavy check mark slash answer B. कोच्चि बटा कोची। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय नौसेना अकादमी एजमाला केरल में स्थित है। The Indian Naval Academy is located at Hitsimala, Kerala. Asterisk 9. हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 लिवरपूल में 57 किलोग्राम महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? Who won the gold medal in the women's 57 kilograms category at the World Boxing Championship 2025, Liverpool? A. पूजा रानी बटा पूजा रानी। B. जैस्मिन लैम्बोरिया बटा जैस्मीने लैम्बोरिया। C. नूपुर श्योरान बटा नूपुर श्योरन। जे मैरी कॉम बटा मेरी कॉम। White heavy check mark slash answer C.
नूपुर श्योरान बटा नूपुर श्योरन। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की स्थापना 1949 में हुई थी। Boxing Federation of India, BFI, was established in 1949. Asterisk 10. हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? Where were the 77th Primetime Emmy Awards 2025 held? A. पीकॉक थिएटर लॉस एंजेलिस बटा पीकॉक थिएटर लॉस एंजेलिस। B. डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड बटा डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड। C. मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क बटा मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क। D. ओपेरा हाउस शिकागो बटा ओपेरा हाउस शिकागो। White heavy checkmark / answer. B. डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड बटा डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. एमी अवार्ड्स की शुरुआत 1949 में हुई थी। The Emmy Awards were first held in 1949. Asterisk 11. अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day of Democracy observed? A. 21 जून बटा 21 जून। B. 24 अक्टूबर बटा 24 अक्टूबर। C. 10 दिसंबर बटा 10 दिसंबर। D. 15 सितंबर बटा 15 सितंबर। White heavy checkmark / answer. D. 15 सितंबर बटा 15 सितंबर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. यह दिवस 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। The UN General Assembly proclaimed this day in 2007. Asterisk 12. भारत में 2025 का इंजीनियर्स डे किस थीम पर मनाया गया? What is the theme of Engineers Day 2025 in India? A. Smart Engineering for Modern India. B. Engineering Innovation for Growth. C. Engineering Solutions for a Sustainable Future. D. Technology for All. White heavy checkmark / answer. C. Engineering Solutions for a Sustainable Future. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. यह दिवस मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। Engineers Day is celebrated on the birth anniversary of M. Visvesvaraya. Asterisk 13. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में कितनी लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? PM Modi recently inaugurated development projects in Manipur worth how much? A. 500 रुपए करोड़ बटा 500 रुपए करोड़। B. 3000 रुपए करोड़ बटा 3000 रुपए करोड़। C. 1200 रुपए करोड़ से अधिक बटा मोर देन 1200 रुपए करोड़। D. 3600 रुपए करोड़ बटा 3600 रुपए करोड़। White heavy checkmark / answer. C. 1200 रुपए करोड़ से अधिक बटा मोर देन 1200 रुपए करोड़। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। The capital of Manipur is Imphal.
*14. हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार कोष (RD) फंड के लिए कितनी राशि घोषित की है? How much amount has the government of India announced for the National R/ND fund recently? A. 50,000 रुपए करोड़ बटा 50,000 रुपए करोड़। B. 75,000 रुपए करोड़ बटा 75,000 रुपए करोड़। C. 1,00,000 रुपए करोड़ बटा 1 रुपया लाख करोड़। दे 1.5 लाख रुपए करोड़ बटा 1 रुपया 50 पैसे लाख करोड़। White heavy check mark / answer. B. 75,000 रुपए करोड़ बटा 75,000 रुपए करोड़। Blue book static GK fact *. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन 1971 में हुआ था। The Ministry of Science and Technology was established in 1971. *15. सतत विकास रिपोर्ट (SDR) 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक रैंक क्या है? As per the Sustainable Development Report (SDR) 2025, what is India's global rank? A. 95वां बटा 95th। B. 99वां बटा 99th। C. 109वां बटा 109th। दे 112वां बटा 112th। White heavy check mark / answer. C. 109वां बटा 109th। Blue book static GK fact *. सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted by the UN in 2015. सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 16 सितंबर मंगलवार। एक पीएम मोदी बोले, कांग्रेस से बिहार के सम्मान पहचान को खतरा। इन्होंने राज्य की तुलना बीडी से की। नीतीश ने कहा, खड़े होकर प्रधानमंत्री को प्रणाम कीजिए। 2 तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट। कालाबाजारी कम होगी। 3 भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधि के साथ छठे दौर की बातचीत संभव। 4 सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो सर रद्द करेंगे। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। 5 पंजाब में राहुल गांधी की SP से बहस, पाक बॉर्डर के पास जाने से रोका। कांग्रेस नेता बोले, भारत में मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। 6 राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार के समान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दलों पर पॉश अधिनियम की याचिका खारिज की। 7 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 1 दिन के लिए बढ़ी। 16 सितंबर तक भर सकते हैं। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल। 8 महाराष्ट्र के सातारा जिला में एक गर्भवती महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। इस दुर्लभ प्रसव में 3 बच्चियों और 1 बच्चे का जन्म हुई है। डिलीवरी के बाद मां और सभी नवजात शिशु सुरक्षित हैं। पहले पैदा हुए थे जुड़वां बच्चे। 9 इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम एक बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया। करीब 1 किलोमीटर तक लोगों को घसीटते हुए ट्रक ने कई जिंदगियां छीन लीं।
हादसे में 7 की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 5 से 7 की मौत की आशंका है। ऐसे में घायलों के परिजन अस्पताल में बिलखते नजर आए। नशे में धुत चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 10 अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% आई, लगातार दूसरे महीने गिरावट। पुरुषों में बेरोजगारी 5 महीने के निचले स्तर पर। 11 मुंबई में भारी बारिश, रेलवे ट्रैक डूबे। हैदराबाद में बाढ़ के हालात, 2 लोग बहे। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू। 12 एशिया कप में आज AFG वर्सेस बैंड। अफगानिस्तान जीत के साथ सुपर 4 में पहुंच जाएगा। बांग्लादेश के पास आखिरी मौका। 13 हांगकांग के खिलाफ 19वें ओवर में जीत पाया श्रीलंका। 150 का टारगेट हासिल करने में 6 विकेट गंवा दिए, सुपर 4 में जगह बनाई। 14 वेनेजुएला से ड्रग्स ले जा रही नाव को अमेरिका ने फिर बनाया निशाना। यूएस आर्मी की कार्रवाई में 3 की मौत। जय श्री राम। मंगलवार 16 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। INDIA-US टैरिफ तनाव के बीच भारत आया अमेरिकी शिष्टमंडल। आज होगी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता। भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 14वें दौर की वार्ता 6 से 10 अक्टूबर तक ब्रसेल्स में। पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा, मृतकों का आंकड़ा 72 हुआ। कार्की ने कहा, नेपाल हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा। झारखंड में नक्सलवाद पर करारा प्रहार, 1 करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन ढेर। अमित शाह बोले, बोकारो क्षेत्र नक्सल मुक्त। सुप्रीम कोर्ट की बिहार सर पर सख्त चेतावनी, गलत प्रक्रिया पाई गई तो रद्द होगी पूरी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया। अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर। लाइव अमेरिकी वित्त मंत्री बोले, टिकटॉक को लेकर अमेरिका और चीन के बीच डील का फ्रेमवर्क तैयार। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक। राहुल गांधी का पंजाब दौरा, बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात। बिहार चुनाव, 70 सीटें और डिप्टी सीएम, कांग्रेस की मांग से तेजस्वी यादव के होश उड़े। पीएम मोदी ने पूर्णिया में सबका साथ सबका विश्वास पर डाला प्रकाश। कहा, आरजेडी और कांग्रेस को है सिर्फ अपने परिवार की चिंता। भारत फरवरी 2026 में करेगा AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी। 2035 तक $8.3 ट्रिलियन GDP का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कोलकाता में आयोजित संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन में की रक्षा तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली NCR में भारी बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। क्यूबा के घुसपैठिए ने काटा था भारतीय मूल के व्यक्ति का सिर, ट्रंप ने कहा, छोड़ेंगे नहीं। ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी का असर, दोनों कीमती धातुओं में आई गिरावट। चांदी 400 रुपए और सोना 200 रुपए सस्ता। INDIA अमेरिका टैरिफ वॉर, रूसी तेल पर नहीं गली दाल तो मक्के पर उतरा अमेरिका। भारत में एंट्री के लिए बना रहा दबाव। हैंडशेक विवाद से पाक को लगी मिर्ची, अब दी एशिया कप छोड़ने की गीदड़ भकी। WATCH इंदौर में बेकाबू ट्रक ने राहगीरों को कुचला, बच्ची समेत 3 की मौत, कई घायल। एशिया कप UAE की जीत से भारत सुपर 4 में पहुंचा, ओमान 42 रन से हारा। अब पाकिस्तान को आखिरी मैच जीतना ही होगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात।
Please hit like beating heart and share.